23 जनवरी ਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦਾ ਐਨੂਅਲ ਅਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਡਿਨਰ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਬੱਸ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਇਵੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਅਚੀਵਮੈਂਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਸਨ, ਸਰਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਸਨ, ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਵੈਂਟਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਵੈਂਟਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗਿਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਬਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਹਾਈਲੀ ਅਟੈਂਡਡ ਇਵੈਂਟ, ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਵੈਂਟ। ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਦੇਖੋ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਇੰਜੋਏ ਦਿਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। My name is Farhan Khokhar, and it's my honor and distinct pleasure to welcome each and every one of you to tonight's event. Agbadi is still kind enough to show up. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. With the words of keynote address, don't be afraid that I will be speaking too long. I know such meetings should not be very long, and I would be very brief. You have been welcomed in this meeting already. On behalf of the organizers, again, I thank you very much for attending this event this evening. Why have we invited you to this event? The reason is that we have a message, and we want your help, and we want to help you to help your cause. What is the cause which is common between us all? That is, that we should all contribute towards peace and prosperity of everyone who have made Canada their home. I believe that we have a message with which nobody can disagree. And that message is message of the Holy Quran, that we should cooperate in everything which is good. And bringing peace and prosperity to Canada is a good cause. And I believe everyone here in this hall wants Canada to be peaceful, Canada to be prosperous. But how do we say that we have a message which would make Canada peaceful and prosperous? The Holy Quran has guided us that when different people are living in a country, in a society, there are certain principles. If they follow those principles, they would be peaceful. And the first and foremost among the principles is that we should respect each other's differences. We should emphasize commonalities, and we should minimize the points of difference. We should cooperate in all things we have common, and in things we differ, we should give the same respect to others for their difference of opinion, which we hope that others will give to us. So I think that our objective to bring peace and prosperity to Canada through the message of Islam is a cause in which we can request help from all Canadians. Media has an important role to play. In addition to letting the people of a country know what is happening, it also helps shape their opinion positively. And here, if you know there is a community which is committed to bringing peace and prosperity to Canada, you have an ally, because this is what all of you believe that you should be doing. And we have invited you to let you know that we are your allies in bringing peace and prosperity to Canada.
Since I've been told that this forum is primarily an ethnic media forum, so I should be speaking in Urdu. मैं जो बात मैंने अंग्रेज़ी में कही है मुख्तसर तौर पर अर्ज़ कर देता हूँ कि आज शाम मैंने आप सबको मुंतज़मीन ने आप सबको इसलिए दावत दी है कि हमारे पास एक पैगाम है। वो पैगाम कनाडा में अमन, सलामती और खुशहाली लाने का पैगाम है। हम समझते हैं कि जो उसूल इस्लाम ने हमें मुल्क में अमन, सलामती और खुशहाली लाने के बताए हैं, वो ऐसे हैं कि उन सब से आपको भी इत्तेफाक है। उन उसूलों में से सबसे पहला उसूल ये है कि हम एक दूसरे से जिन बातों में इख्तलाफ करते हैं उनमें हम दूसरों को हक़ दें कि वो भी दयानतदारी से ये समझें कि उन मामलात में उनका नुक्ता नज़र दुरुस्त है, और हम बावजूद उससे इख्तलाफ करने के उनको इस बात का हक़ दें और उनकी इस बात में इज़्ज़त करें। दूसरी बात यह है कि हम जिन मामलात में एक दूसरे से इत्तेफाक रखते हैं उनमें एक दूसरे के साथ तावन करें। इस तावन के लिए जमात अहमदिया कनाडा के हर दूसरे फ़र्द के साथ, हर कम्युनिटी के साथ तावन करने के लिए तैयार है। इस गर्ज से एक काम जो जमात कर रही है वो ये है कि हम मुख्तलिफ़ मज़ाहब के मानने वालों को एक फ़ोरम पर इकट्ठा करते हैं और एक मौजू पर उनसे दरख्वास्त करते हैं कि आप अपने अपने मज़हब की खूबसूरती बयान करें और भाइयों और बहनों की इकट्ठे बैठने की फ़ज़ा में हम एक दूसरे के बारे में मालूमात हासिल करें। अमन का सबसे बड़ा दुश्मन जहालत है। अमन की सबसे बड़ी दुश्मन जहालत है, और जब हम अपने हमसाये के बारे में, दूसरे शहरी के बारे में नहीं जानते कि उसके ख़यालात क्या हैं, हमें उससे डर लगता है, हम उसको गैर समझते हैं, हम उसको दोस्त नहीं समझते। लेकिन अगर ऐसे तमाम लोगों को हम इकट्ठा करके एक अच्छी भाईचारे की फ़ज़ा में उनसे कहें कि हमें अपने बारे में बताएं, और जब हम एक दूसरे के बारे में जानेंगे तो हमें मालूम होगा कि उन सब के दिल कनाडा के अवाम के लिए अमन, सलामती और खुशहाली के जज्बात से भरे हुए हैं। इस इल्म के बाद हमारा एक दूसरे के साथ बर्ताव दोस्तों वाला बर्ताव होगा, अजनबियों वाला बर्ताव नहीं होगा। तो ये एक तरीक़ा है जिसके ज़रिए जमात कनाडा में अमन, सलामती और खुशहाली लाने की कोशिश कर रही है। और आज की शाम इसी सिलसिले में है कि हम आपको अपने बारे में बताएं और आपसे मज़ीद ये पूछें कि हम क्या करें जिसके बाद आप हमारे इस पैगाम को जो हम कनाडा में अमन, सलामती और खुशहाली लाने के लिए कर रहे हैं, हम कैसे इसको बेहतर तौर पे तमाम कैनेडियंस तक पहुंचा सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात को सुना, और अब मैं आपको दावत देता हूं कि जो बातें मैंने अर्ज़ की हैं इनके बारे में अगर आपका कोई मशवरा हो, आप इस पर कोई तबसरा करना चाहें तो वक्त की रियायत से मुख्तसर तौर पर इसके लिए का मौका है। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने का। तो मैं समझता हूँ कि लोग चूँकि गपशप में लगे हुए हैं तो उनकी इस लुत्फ़ में जो है मदाखलत करने वाली बात है, लेकिन एक आध बात जो करनी बहुत ज़रूरी है चूँकि सारे मीडिया के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये लोग जो हैं इनके साथ हम लोगों ने पाकिस्तान में जो है वो प्रेस के हवाले से बहुत बड़ी ज़्यादती की है, लेकिन ये सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं, वहाँ हर बंदे के साथ किसी न किसी सतह पे कोई ना कोई ज़्यादती होती है। ये अभी तारक फतेह साहब से मैं बात कर रहा था सुलेमान तासीर साहब के हवाले से कि आप देखें कि उनके साथ क्या हुआ और क्या हो रहा है। और वो आदमी जिसने किया वो अभी ये बता रहे थे कि उसके ट्रक आते हैं, खतूत के ट्रक भरे हुए आते हैं, और वो पाकिस्तानियों का हीरो है। और हमें हैरत होती है कि वो मुल्क जो है वो सरवाइव करता है और सरवाइव कर रहा है, और पता नहीं बाकौल फैज़ अहमद फैज़ के मुझे अंदेशा है कि सरवाइव करता रहेगा इसी तरीके से।
भुट्टो साहब जो हैं वो मेरे बहुत हवाले से मैं समझता हूँ कि मैं चूँकि लीडरों की कोई ज़्यादा इज्जत नहीं करता, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक ऐसे आदमी थे जिनके जो विजन है, उनकी जो दानिश थी, जो उनकी इल्म था, मैं उससे बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है मुतासर हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये तीसरी दुनिया की खुशकिस्मती थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा लीडर जो है वहाँ पे पैदा हुआ था। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी शख्सियत से और अपनी तारीख़ से और हमालिया से भी बड़ी गलती करके उसको मसक किया, जो उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मुल्लायत के ज़ेर असर आके इस तरह का ये स्टेप जो है उठाया। और इन लोगों को इनके आइनी हुकूक कि जब रियासत को आप घसीट के मस्जिद के अंदर ले आए, जहाँ एक तरफ मौलवी बैठ के एक फतवा देता है और दूसरी तरफ पार्लियामेंट जो है उस फतवे को बाकायदा आइनी शक्ल देती है। मैं समझता हूँ कि दुनिया की तारीख़ में इस तरह का जुल्म और इस तरह की नाइंसाफ़ी कभी किसी कौम ने किसी पार्लियामेंट में बैठ के ना की होगी, ना कर सकती है। चूँकि हम बिलीव करते हैं कि पार्लियामेंट में बैठने वाले लोग जो हैं वो एक प्रोसेस से गुजर के आते हैं, लोगों के सामने जवाबदेह होते हैं, अपने ज़मीर के सामने जवाबदेह होते हैं। लेकिन ये ऐसा हुआ तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को यहाँ पे भी, मैं समझता हूँ यहाँ बहुत सारे ये आमिर अरानी साहब बैठे हुए हैं, राना साहब बैठे हैं, जो हमारा उर्दू प्रेस है, उसका एटीट्यूड अब भी वही है जो वहाँ था। कि उसमें मसलन मैं लिखता हूँ, कालम में लिखता हूँ गुज़श्ता 10-12 साल से, और जब भी कभी मैंने अहमदियों के हवाले से या अक़लियतों के हवाले से कोई कालम लिखा, मुझे न्यूयॉर्क से किसी खान साहब का फ़ोन आता है। एक साहब ने कहा कि तुम तो गधा आदमी है, तुमसे क्या बात करें। अब ये जो गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी की वजह से वहाँ प्रेस की ये हालत है, और वो गुंडागर्दी यहाँ भी है। और राणा साहब, आप लोग भी डरते हैं कि अगर हमने अहमदियों के हक़ में कुछ लिख दिया तो मुमकिन है कोई एहतियात न हो। सर, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, आप लोग पाकिस्तान को बैशिंग करते हैं, इंडिया में भी मिनॉरिटी से ज्यादती होती है। आप इसको पाकिस्तान और इंडिया का मसला ना बनाएं, इसको कैनेडियन फंक्शन रखें। ये पाकिस्तान और इंडिया की बात नहीं है। तो आपने पाकिस्तान की मिसाल दी है, मैंने इंडिया का नाम ही नहीं लिया। इंडिया में भी टूटती है, तो मैं कब कहता हूँ तो आपने नाम नहीं लिया। मैं क्यों लूँ? नहीं लिया। अभी आप कह रहे हैं, कब कहता हूँ, अभी कहते हैं मैंने नाम नहीं मैं लिया। इनकी बात कर रहा हूँ, इनको इंडिया ने तो इलीगल नहीं करार दिया। ये नंबर बनाने जो है ना, छोड़ दें। 2000 में सबसे पहला इश्तार पाकिस्तान पोस्ट में अहमदिया कम्युनिटी का मैंने छापा था। वेरी गुड, वेरी गुड। और सारों की मुखालफत की थी 2000 के अंदर। इसीलिए मैंने आपका नाम लिया, बदनाम करना आपको, इसीलिए मैंने आपका नाम, इसीलिए ये पर्सनल कोई बात नहीं है। मैं अगर किसी की तसल्ली ये सुन के होती है कि मैंने डेकोरम तोड़ा, मैं माजरत खाऊं, लेकिन एक ही जगह की, एक ही कंट्री की बैशिंग करना, मुझे पता है पाकिस्तान में जो हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन मिनॉरिटी से हर जगह होती है, इवन यहाँ के कल्चर में भी होती है। किसी एक चीज़ को माइक्रोस्कोप के नीचे ला के सिर्फ उसकी बैशिंग करना, दैट वाज माय एजिटेशन एंड आई स्टिल स्टैंड फॉर इट कि हम यहाँ लव, पीस, हारमनी और एक दूसरे को बर्दाश्त करने का मैसेज लेके आए हैं, ना कि नफरत फैलाने का। थैंक यू। वालेकुम सलाम, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। I like to thank Jamaat Ahmadiyya to put up such a diverse event where we could all come together and share some of the views. Obviously, वो जिस तरह कहते हैं ना भी, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੌਂਡਰੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਏ ਹੁਣ। Is that possible, Fateh sahab? No, it's not. You know why? 10,000 ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪਾਠ ਸੁਣੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ। It's not a news. ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 5 ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਲੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। It's a front page news. You know, there's a rule of thumb. Bad news is a good news for media. And I think why I'm talking like this, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੋਕ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਡੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭੌਂਕਦਾ, ਵੱਢਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਉਹੀ ਕੁੱਤਾ ਫਿਰ ਪੂਛ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਵਧਾਓ। पर एक गल ज़हन दे विच रखियो कि हम इखलाक के हाथों बिकते हैं, वो कोई और होंगे तेरे दरबार बिकने वाले हैं। क्योंकि वो पत्रकार नहीं जिहड़ा बिक जावे, वो पत्रकार नहीं जो अपनी कलम नूं चंद छिलड़ां दे लई गिरवी रख दे। वो पत्रकार नहीं जो अपनी जुबान नूं किसी होर दे हथ दे देवे कि मेरे दिमाग नाल वो कनैक्शन तोड़ के मैं तेरे दिमाग नाल लाउना, तू सोच ते मैं बोलूं। ये मीडिया नहीं है। तो मेरे सारे पत्रकार भरा इत्थे बैठे ने, इसे करके कई बार गुस्सा भी आ जाता जो कोई पत्रकारां दे खिलाफ आप जिहड़ा खरीदण वाला हुंदा उही कहंदा है कि पत्रकार बिकाऊ ने। So my thumbs up to all the newspaper editors, radio host, Punjabi Press Club, सब तो डाइवर्स प्रेस क्लब आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ। And this is what we represent. Love for all, hatred for none. ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਇਹ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।